नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस दौरे पर हैं और इसको लेकर विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने बताया कि पीएम मोदी ने एस्टोनिया के राष्ट्रपति अलार कारिस के साथ में एआई शिखर सम्मेलन के मौके पर द्विपक्षीय बैठक की और ये दोनों नेताओं के बीच में पहली बैठक थी। दोनों ने विशेष रूप से आईटी और डिजिटल क्षेत्र सहित कई क्षेत्रों में बढ़ते द्विपक्षीय सहयोग पर संतोष व्यक्त किया। Prime Minister today held a bilateral meeting on the sidelines of the AI summit with the President of Estonia, His Excellency Alar Karis. This was the first meeting between the two leaders, and both of them expressed satisfaction at the growing bilateral cooperation in several fields, including especially the IT and digital sphere. And agreed to increase institutional and people-to-people engagements between the two countries. As you're aware, this evening, Prime Minister will be co-chairing or the Prime Minister and the President will be jointly addressing the India-France CEOs Forum. And following that, Prime Minister will depart for Marseille, where also bilateral engagements between him and President Macron are foreseen. And we'll update you on the substantive part of the bilateral visit, perhaps sometime tomorrow. उधर पीएम मोदी एआई एक्शन शिखर सम्मेलन को लेकर पेरिस दौरे पर हैं, जहां उन्होंने शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। पीएम ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। If you upload your medical report to an AI app, it can explain in simple language, free of any jargon, what it means for your health. But if you ask the same app to draw an image of someone writing with their left hand, the app will most likely draw someone writing with the right hand. Because that is what the training data is dominated by. It shows that while the positive potential of AI is absolutely amazing, there are many biases that we need to think carefully about. That is why I am grateful to my friend, President Macron, for hosting this summit and for inviting me to co-chair it. Friends, AI is already reshaping our polity, our economy, our security, and even our society. AI is writing the code for humanity. AI is writing the code for humanity in this century. But it is very different from other technology milestones in human history. AI is developing at an unprecedented scale and speed, and being adapted and deployed even faster. There is also a deep interdependence across borders.
Therefore, there is a need for collective global efforts to establish governance and standards that uphold our shared values, address risks, and build trust. But governance is not just about managing risks and rivalries. It is also about promoting innovation and deploying it for the global good. So, we must think deeply and discuss openly about innovation and governance. Governance is also about ensuring access to all, especially in the global south. It is where the capabilities are most lacking, be it compute, power, talent, data, or the financial resources. Friends, AI can help transform millions of lives by improving health, education, agriculture, and so much more. It can help create a world in which the journey to sustainable development goals becomes easier and faster. To do this, we must pull together resources and talent. We must develop open source systems that enhance trust and transparency. We must build quality data sets free from biases. We must democratize technology and create people-centric applications. We must address concerns related to cybersecurity, disinformation, and deepfakes. And we must also ensure that technology is rooted in local ecosystems for it to be effective and useful. Friends, loss of jobs is AI's most feared disruption. But history has shown that work does not disappear due to technology. Its nature changes and new types of jobs are created. We need to invest in skilling and reskilling our people for an AI-driven future. Friends, there is no doubt that the high energy intensity of AI needs to be looked into. This will require green power to fuel its future. India and France have worked together for years through initiatives like the International Solar Alliance to harness the power of the sun. As we advance our partnership to AI, it is a natural progression from sustainability to innovation to shape a smarter and responsible future. At the same time,
Sustainable AI does not only mean using clean energy. AI models must also be efficient and sustainable in size, data needs, and resources requirements. After all, the human brain manages to compose poetry and design spaceships using less power than most light bulbs. Friends, India has successfully built a digital public infrastructure for over 1.4 billion people at a very low cost. It is built around an open and accessible network. It has regulations and a wide range of applications to modernize our economy, reform governance, and transform the lives of our people. We have unlocked the power of data through our data empowerment and protection architectures. And we have made digital commerce democratic and accessible to all. This vision is the foundation of India's national AI mission. That is why, during our G20 presidency, we built a consensus on harnessing AI responsibly for good and for all. Today, India leads in AI adoption and techno-legal solutions on data privacy. We are developing AI applications for public good. We have one of the world's largest AI talent pools. India is building its own large language model considering our diversity. We also have a unique public-private partnership model for pooling resources like compute power. It is made available to our startups and researchers at an affordable cost. And India is ready to share its experience and expertise to ensure that AI future is for good and for all. Friends, we are at the dawn of the AI age that will shape the course of humanity. Some people worry about machines becoming superior in intelligence to humans, but no one holds the key. उधर फ्रांस में एआई समिट में पीएम मोदी ने प्रतिभाग किया और इस बीच जो है फ्रांस पहुंचे हमारे चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी ने पेरिस में भारतीय लोगों से बातचीत की। बता दें कि लोगों से जो है महाकुंभ को लेकर भी बातचीत की गई है। आइए आपको सुनाते हैं। तो इस समय मौजूद है, हम लोग यहाँ पे खड़े हैं पेरिस में। जी हाँ, आप देख सकते हैं हमारे साथ भारतीय लोग भी यहाँ पे हैं और आइए जानते हैं उनसे पूछेंगे कि क्या उनको लग रहा है फ्रांस आके 2 दिवसीय प्रधानमंत्री जी की यात्रा यहाँ पे, क्या कहना चाहेंगे आप मोदी जी का? आपको यहाँ पे क्या महसूस हुआ, उनके व्यक्तित्व के बारे में क्या लगा आपको? जी तो मोदी जी हैं
काफी उनका व्यक्तित्व तो ऊंचा हो ही गया है, सारे इंडिया में बोलबाला है एंड बाहर की कंट्रीज में भी उनका काफी बोलबाला है। सब जगह वो अपनी परचम फैला रहे हैं इंडिया को लेकर के। एंड अभी महाकुंभ जो इंडिया में चल रहा है बहुत ग्रेट लेवल पे हो रहा है वो, और इतने लोग दर्शन कर चुके हैं, स्नान कर चुके हैं, तो उसकी मतलब एक अपनी इंडिया की एक अपनी पहचान है। तो आपको लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है जो मोदी जी खास तौर से कि उनके बारे में आपको यहाँ क्या लगता है, विदेश में कैसा महसूस करते हैं आप उनके बारे में? नहीं, मोदी जी तो मोदी जी है, महसूस करने का तो देखिए इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इंडिया मिस करते हैं हम लोग विदेश में आकर के। और कुंभ में इस बार आप क्यों नहीं, आपने क्या जाने का सोचा? नहीं बनाया। तो आप जाना चाहे, अगर आपको मौका लगे तो जरूर जाना चाहिए। जरूर जाना। योगी जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? योगी आदित्यनाथ जी के बारे में क्या शुभ नाम है आपका जो है? दीपक रावगी। तो आप कहाँ, यही फ्रांस में रहते हैं? नहीं, मैं झांसी यूपी। अच्छा, तो आप यूपी से आए हैं? हाँ जी। तो हमारे साथ ये यूपी के हैं, आप देखिए। हाँ। और इस बार महाकुंभ लगा, इस बार आप कैसा लगा आपको? अभी तक आप एक बार गए वहाँ पे? नहीं गए नहीं, लेकिन जाना है, बहुत अच्छा है, हमारे फैमिली मेंबर गए हैं। और किस बार योगी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? योगी जी बहुत ही अच्छे आदमी हैं, उनका शासन भी बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे यहाँ मोदी जी चला गए हैं, यूपी में योगी जी चला गए हैं, तो बहुत अच्छे आदमी और बहुत अच्छे तरीके से जो है वो चला गए हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी एआई समिट और पीएम मोदी के दौरे को लेकर पेरिस में हैं, और आपको बता दें कि जहां पर चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी ने महाकुंभ को लेकर जानकारी साझा की, क्या कुछ कहा आइए आपको सुनाते हैं। हम इस समय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। 2 दिवसीय दौरा यहाँ पे लगा हुआ है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। और जब बात फ्रांस की हो रही है तो निश्चित रूप से यहाँ पे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के बारे में हमें शब्द हमारे लिए कम है, क्योंकि जिस प्रकार से उनका यहाँ पे सम्मान हुआ, जिस प्रकार से यहाँ पे कल यहाँ के राष्ट्रपति ने उनको सम्मान दिया, वो अपने आप में अद्भुत था। तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पे आए हुए थे, लेकिन जो सम्मान हमारे प्रधानमंत्री जी को मिला वो अपने आप में शब्दों से बताने योग्य नहीं है। उससे कहीं हम उसको शायद सब महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हम वहां पर मौजूद थे। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम इस समय महाकुंभ के ऊपर भी लेकर के हम चाहेंगे कि अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कृपया एक बार वो थोड़ा सा यहाँ फोकस करें। देखिए, ये महाकुंभ को लेकर के खास तौर से हम यहाँ पे एक स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं। ये एफिल टावर, जी हाँ, ये हमारा पेरिस में ये सबसे ज्यादा पॉपुलर यहाँ का ये खास तौर से ये यहाँ की ये एक इमारत है जिसको हम लोग कह सकते हैं ये काफी वर्षों पुरानी है। जी हाँ, दिव्य कुंभ हो रहा है। आप जैसा आप देख सकते हैं, सनातन गर्व महाकुंभ पर्व, सामाजिक समता का महापर्व, मानवता की अमृत संस्कृति धरोहर, पुण्य फले महाकुंभ चले। जी हाँ, हम पेरिस में पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं, मैं चाहूंगा अपने वीडियो जर्नलिस्ट को एक बार दिखाएं। ये है पेरिस का वो नजारा जहां पे सबसे यहाँ की जो सबसे महत्वपूर्ण बिल्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम मौजूद हैं। और महाकुंभ को लेकर के जिस प्रकार से पूरा विश्व उसकी बात कर रहा है, यहाँ पे हम पेरिस पहुंच चुके हैं। हम चाहेंगे कि एक बार अपने वीडियो जर्नलिस्ट को दिखाएं इस अद्भुत बिल्डिंग को जिसको हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और इस बिल्डिंग के समक्ष हम खड़े होकर के बातचीत कर रहे हैं। जो महाकुंभ इस बार पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसकी पॉपुलैरिटी हो चुकी है, आदरणीय प्रधानमंत्री स्वयं वहां पे मां गंगा की उन्होंने उसमें डुबकी लगाई है, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने उसमें डुबकी लगाई है। और जैसा कि आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ लोग हैं, और हम उन सब लोगों से बातचीत कर रहे हैं। उन सब से लोगों ने हमसे बताया भी, बहुत सारे लोग ऐसे भी पेरिस में आए हुए हैं जो अपने आप को ये मानते हैं कि अभी तक वो कुंभ नहीं जा पाए हैं, लेकिन वो कुंभ में खास तौर से अपने आप को लेके जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो इस पुण्य को कमाना चाहते हैं। जैसे आपने देखा, सनातन गर्व महाकुंभ पर्व, ये एक पर्व है और एक धरती का पर्व है। मैं इस समय खड़ा हूं पेरिस में और आप देखिए किस प्रकार से यहाँ पे लोग हैं। ये पूरी सड़क है, यहाँ चलती हुई सड़क मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि लोग यहाँ पे जा रहे हैं। ये सारे लोग इस खास तौर से देखने के लिए आए हैं इस बेहतरीन इमारत को। मैं दोबारा चाहूंगा कि कृपया इसको दिखाएं, इसकी भव्यता को। और हम लोग इस समय यहाँ पे बैठ करके कर रहे हैं ये कार्यक्रम, और महाकुंभ को लेकर खास तौर से जिस प्रकार से महाकुंभ की विशेषताएं, महाकुंभ के बारे में हम आपको बताते चलें, और महाकुंभ में जिस प्रकार से पूरे विश्व के लोग आ रहे हैं। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार से मेहनत की है और उनकी जिसके गाइडेंस के अंदर इस बार महाकुंभ पर्व का पूरी तरीके से व्यवस्था की गई है, वो अपने आप में अद्भुत है। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से हम लोग यहाँ पे लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जो दूसरे देशों के हैं। यहाँ पे पर्यटक बहुत हैं, पूरे विश्व के पर्यटक यहाँ पे आते हैं। बहुत सारे पर्यटक आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। देखिए ये किस प्रकार से लोग हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार पूरा व्यू दिखाएं यहाँ का। ये अपने आप में ये एफिल टावर के सामने हम खड़े हैं और आप देखिए
कि किस तरह से लोग हैं यहाँ पे जो कि पूरी तरीके से यहाँ पे आ रहे हैं। और हम लोग वर्तमान में सनातन गर्व की हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, महाकुंभ में जो लोग नहीं अभी तक आ सके हैं उनके लिए भी समय 26 फरवरी है, वो जरूर यहाँ पे आए। पेरिस से अपने वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी, साधना समूह के लिए। पेरिस में चल रहे एआई समिट को लेकर ब्यूरो हेड सपना चारण ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन से खास बातचीत की और इस बातचीत में एस कृष्णन ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। एस कृष्णा जी हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी माइटी। हम उनसे बात करेंगे। यहाँ पेरिस में हम इस वक्त मौजूद हैं। एआई समिट चल रहा है 10 और 11 फरवरी को। सर, जैसे कि कल हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जिस तरह से मुलाकात हुई फ्रांस के प्रेसिडेंट ने जिस तरह से की, उस तरह से मुलाकात किसी और गेस्ट के साथ नहीं हुई। हमने जिस तरह से देखा उस पर सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी आपका क्या कहना है। देखिए, मैं तो अक्सर प्रधानमंत्री जी के साथ ट्रैवल नहीं करता हूँ। ये सवाल तो बेहतर होगा आप विदेश मंत्रालय के कोई अधिकारी से पूछें, वो ये देखते हैं। लेकिन हमने जो पाया फ्रांस की ओर से काफ़ी वार्मथ था और वो चाहते थे कि इंडिया इसके भाग में रहें और प्रधानमंत्री को काफ़ी मुख्यत्व मिला आज के एआई समिट में। कल वो रात्रि के भोज पे भी प्रस्तुत थे। आज एआई समिट में उनका लीड स्पीकर के महत्वपूर्ण स्तर दिया गया। तो और सारे देशों जो वहाँ बोल रहे थे वो यही कह रहे थे कि को होस्ट फ्रांस और इंडिया करके भारत का नाम बार बार लिया गया और भारत को जो है जो रिकग्निशन जो भारत के स्तर का एक देश को जो रिकग्निशन मिलना चाहिए और भारत ने जो इस स्पेस में काम किया है और ग्लोबल साउथ की एक वॉइस के आधार पर जो भारत ने सबका जो आवाज उठाया है उसको उचित रिकग्निशन मिला, यही माना। सर, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि एआई को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लोगों के मन में, बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स भी हैं। जो जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है तो उसके बहुत सारे फायदे भी होते हैं, बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। तो एआई को जब इंडिया में किया जाएगा, लाया जाएगा, तो इस पर आपका क्या विचार है? लोगों को उसको किस एंगल से लेना चाहिए? क्या देखिए, जहां तक भारत का सवाल है, एआई के बारे में बहुत लोगों को जो है आशंका थी, एक डाउट था कि इससे क्या हो सकता है, इससे क्या डैमेज हो सकता है, इससे क्या हानि हो सकती है। और जो पहले एआई समिट हुआ था वो एआई सेफ्टी के बारे में ही उस समिट का फोकस था। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोग डर रहे थे कि एआई से क्या हो सकता है। लेकिन अब जो है फोकस पूरी तरह से अलग दिशा में आ गई है। अब तो सारे देश ये कह रहे हैं कि एआई की काफी सारे लाभ भी हो सकते हैं। इसको जो डेवलपमेंट और विकास जो होनी चाहिए उसमें हम अच्छी तरह से इसकी उपयोग कर सकते हैं। अतः एआई को ये वाला स्तर मिला है कि ये एक ब्रॉड बेस्ड जनरल टेक्नोलॉजी, हॉरिजॉन्टल टेक्नोलॉजी है जो कि हर एक स्फीयर में यूज किया जा सकता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी या स्टीम पावर पिछले दशकों में जब ये टेक्नोलॉजीज आए थे और ये सब जगह यूज हुए, उसी तरह एआई का भी प्रयोग किया जा सकता है। जिस तरह से फ्रांस का और इंडिया का जो एक रिलेशन है पहले से ही मजबूती रही है, इस एआई समिट के बाद आपको क्या लगता है कि जब इंडिया में इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया जाएगा तो रिलेशंस को आगे कैसे देखा जाएगा वर्ल्ड वाइड? देखिए, इंडिया और फ्रांस का हमेशा बहुत ही एक मजबूत रिलेशनशिप रह चुका है। इससे भी आपको ये विदेश मंत्रालय के अधिकारी से पूछना पड़ेगा कि भाई कैसे ये जो रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। लेकिन हमारा जहां तक मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इस स्पेस में तो हमारा एक अच्छा रिलेशनशिप बना हुआ है फ्रांस के साथ और ये रिलेशनशिप और भी मजबूत होगा। थैंक यू सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ एस कृष्णा जी, जिन्होंने बताया कि एआई समिट का आखिर क्या असर रहेगा भारत पर और किस तरह से आगे इस पर काम किया जाए। कैमरा पर्सन विजय के साथ मैं सपना चारण, साधना प्लस, पेरिस। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, जरा कल्पना करो